بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ محترم دوستو، آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی کا خوبصورت بیان۔ جی ہاں دوستو، بیان کا عنوان ہے نظر و نیاز اور منت و مراد۔ جی ہاں دوستو، اس بیان میں حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شرک اور بدعت کا بڑا ہی ایموشنل اور شعلہ بیان کیا ہے۔ چلیے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں بیان کی جانب۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین، بادشاہوں کا بادشاہ، مالک الملک، اس کائنات کا ذرہ ذرہ پیدا کرنے والا، پتا پتا پیدا کرنے والا، ایک ایک قطرہ پیدا کرنے والا، ایک ایک کنکر پہاڑ کی بنانے والا۔ دنیا کی بعض چیزیں دیکھ کر لوگ بعض غور کرتے ہیں۔ اگر کوئی انجینئر، کوئی ہنرمند 4 فٹ کی چھت بنا دے اور اس کے نیچے کوئی تھمبا، کوئی ستون نہ دے، لوگ تعجب مانیں گے، دیکھنے جائیں گے، اخباروں میں شور مچے گا، ریڈیو اور ٹی وی پہ ہنگامہ ہوگا۔ فلانے ملک کا اتنا عظیم انجینئر ہے، اس نے 4 فٹ کی چھت بنائی، نیچے سہارا کوئی نہیں اور وہ کھڑی ہے، دنیا دیکھنے جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں ظالموں، بندوں کی بنائی ہوئی چیز کی طرف تیری نگاہ جاتی ہے، میں خدا کی کارروائی کی طرف نگاہ نہیں جاتی۔ یہ کتنا بڑا آسمان ہے، تم نے کہاں دیکھا کوئی میں نے ستون کھڑا کیا ہوا ہے؟ خلق السماوات بغیر عمد ترونها، اور اس طرح کے 7 آسمان بنائے ہیں، کوئی تھمبا نہیں، کوئی سہارا نہیں، کوئی ٹیک نہیں، اپنی قدرت کاملہ سے میں نے سنبھال رکھا ہے۔ ستاروں کا نظام ہے، چاند کا نظام ہے، سورج کا نظام ہے، رات دن کا نظام ہے، میرے نظام کی طرف نگاہ کبھی نہیں اٹھتی؟ چلو اگر تمہیں کائنات کا نظام نظر نہیں آتا، اپنے اوپر غور کر لے، ایک گندے پانی کے قطرے سے میں نے کتنا خوبصورت آدمی بنایا، اور تیرے سے بنانے کی مزدوری کبھی نہیں مانگی۔ جوتی پالش کرا، پیسے نہ دے تھپڑ مارے گا، مفت پالش کرا رہا ہے جوتی کی۔ اور اللہ فرماتے ہیں میں نے پیروں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک بنایا، کوئی قیمت نہیں لی، کوئی کرایہ نہیں لیا، کوئی مزدوری نہ لی، بس میرا ایک حکم مان جا۔ پیر بھی تیرے میں نے بنائے، ہاتھ بھی میں نے تیرے بنائے، دل و دماغ جسم بھی میں نے بنایا، زبان میں نے بنائی، آنکھیں کتنی پیاری پیاری میں نے دی۔ ایک بات مان جا میری، یہ جو تیرا سر ہے یہ تیرے جسم کا سردار ہے، تیرا سر میرے دروازے کے سوا کہیں نہ جھکے۔ اللہ اللہ، میں بے نیاز خدا ہوں اور تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، میں صرف یہ کہتا ہوں تو بندہ میرا ہے، میں نے تجھے بنایا، میں تیری موت بھیجوں گا، میں ہی تجھے پھر زندہ کروں گا، اور میں نے سارا نظام تیرا نبھانا ہے۔ بس ایک خیال کر، یہ تیری جبین نیاز جو ہے پیشانی، میری چوکھٹ کے سوا یہ اور کہیں نہ جھکے۔ درختوں کے آگے نہ جھکے، قبروں کے آگے نہ جھکے، مزاروں کے آگے نہ جھکے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے اپنی کبریائی کی قسم، تو جب غیروں کے دروازے پہ سر جھکاتا ہے میرا غضب جوش میں آتا ہے، میرا قہر جوش میں آتا ہے۔ کمینے، اگر تجھے اپنی سمجھ نہیں
یہ اتنے جانور پرندے میری ہزارہ مخلوق ہے، کبھی تم نے کوئی جانور نہیں دیکھا کسی قبر کو سجدہ کرتے ہوئے؟ ان کو بچے بھی میں دیتا ہوں، اولاد بھی میں دیتا ہوں، خوراک بھی میں دیتا ہوں، کھلاتا پلاتا بھی ہوں میں۔ بعضی جانور ایسے ہیں جو باسی پر اٹھا گوشت نہیں کھاتے، میں ان کو تازہ گوشت کھلاتا ہوں۔ ان آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی ایک عجیب واقعہ ارشاد فرمایا حضرت مریم علیہ السلام کا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ ہے، اولاد کوئی نہیں، منت مانتی ہے، نظر مانتی ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران، اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک، اے میرے بے نیاز بادشاہ، اے میرے خالق و مالک، زمین و آسمان کی پیدا کرنے والے، ساری کائنات کی پیدا کرنے والے، میں نے تیرے نام کی نظر مانی، میں تیرے نام کی نظر مانتی ہوں، تیری منت مانتی ہوں۔ اذ قالت امرأۃ عمران، اس نے تو نظر مانی۔ قرآن میں ذکر کرنے کا کیا مطلب؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی ہے، یہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد آسمان سے کوئی کتاب نہیں آنی، کوئی احکام نہیں آنے۔ میں مریم علیہ السلام کی والدہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ قیامت تک کے مسلمانوں میں، انسانوں میں جو بھی ایسا ہو بے اولادہ، جس کو اولاد نہ ملے یا بیمار ہو کر مر جائے، اس کو تعلیم دینے کے لیے وہ قبروں میں جا کے ماتھے نہ رگڑنا، وہ ادھر ادھر درختوں کی جا کے پوجا نہ کرنا۔ مریم علیہ السلام کی والدہ کا طریقہ میں بتاتا ہوں، عمل تم کر لینا۔ اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک، میرے مولا میں نظر مانتی ہوں، اپنے پروردگار کی نظر مانتی ہوں، خالق و مالک کی نظر مانتی ہوں، تیری بے نیازی کی نظر مانتی ہوں، اور میری حاجتوں کو پورا کرنے والا کوئی نہیں، میری جھولی پوری کرنے والا کوئی نہیں، میری گود کو آباد کرنے والا کوئی نہیں، میرے گھر کو بسانے والا کوئی نہیں۔ رب انی نذرت لک، تیری نظر مانتی ہوں، تو ہی مالک و مختار ہے، ساری کائنات کو بچے دینے پہ تو ہی قادر ہے، نفع گھاٹے بادے پہ تو ہی قادر ہے، چاہے درجنوں بچے عطا فرما دے، چاہے ایک بھی نہ دے، جس کو چاہوں لڑکی دوں، جس کو چاہوں لڑکا دوں۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اب یزوجہم ذکرانا واناثا، جس کو چاہوں لڑکا دوں، جس کو چاہوں لڑکی دوں، جس کو چاہوں جوڑے جوڑے عطا کر دوں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہوں کچھ بھی نہ دوں، ساری عمر ترس ترس کے قبروں میں چلے جائیں۔ قرآن کی بات سمجھ میں نہیں آتی، صحابہ کرام کا عمل سمجھ میں نہیں آتا، محمد کریم صدقہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سمجھ میں نہیں آتی۔ اتنا شرک ہے، اتنی بدعات ہے کہ حد ہو گئی۔ جو منع کرے اسی کو خشک واز کرتے ہیں، جی کیا ہے خشکی، خشک یہ خشک لوگ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں عورتوں کے واقعے بھی سنا دیے اور اپنے قرآن میں ذکر کیے، کوئی تبدیل بھی نہیں کر سکتا، زیر و زبر نہیں بدل سکتا، قرآن کے ایک حرف کے نقطے نہیں کوئی بدل سکتا۔
वो भी तो औरत थी, परेशान हाल थी। कहते इज़ क़ालत इम्राअतु इमरान रब्बी इन्नी नज़रतु लक मा फी बतनी मुहर्ररा। मौला, जो कुछ मेरे पेट में है तेरी नजर कर दूंगी, मैं अपना दावा ना जताऊंगी, तेरे बैतुल मुकद्दस में छोड़ दूंगी। झाड़ू दिया करेगा, हिफाजत किया करेगा, बच्चा मेरा मस्जिद की सफाई करेगा, कब्र में मेरे काम आएगा। उसका ख्याल भी देखो, बैतुल मुकद्दस में वक़फ़ कर दूंगी, कमाई का मुतालबा ना करूंगी, कमाई मैं मां होकर नहीं मांगूंगी, तेरे घर के लिए वक़फ़ कर दूंगी। बैतुल मुकद्दस में झाड़ू दिया करे, सफाई किया करे, हर वक्त मस्जिद का ख्याल किया करे। और आज मेरा तेरा ख्याल ये है, पहले ही रात को मियाँ बीबी मशवरा करते हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह लड़का देगा, उसको पब्लिक स्कूल में पहले पढ़ाएंगे ताकि अंग्रेजी अच्छी जान जाए, फिर फलां अफसर बनाएंगे, फिर वो रिश्वत का खून लेकर आया करेगा, फिर हम वो पी पी कर मरेंगे, जब हम मरेंगे तो हमें कफन भी रिश्वत का मिलेगा। वो नजर मान रही है मस्जिद के लिए, मस्जिद की सफाई के लिए, मस्जिद में झाड़ू देने के लिए। आज तो अच्छे अच्छे लोगों को तौफीक नहीं, वे खादिम रख छोड़ते हैं, मुलाजिम सफाई किया कर, सफ़े बिछाया कर। तुम्हें क्या मालूम है इस खादिम को भी इस सवाब नहीं मिलता, इसलिए कि वो तनख्वाह लेकर करता है, नीयत उसकी भी ये नहीं है कि अल्लाह अजर देगा। हदीस की किताबों में आता है, क़यामत में ऐन उस घबराहट के वक्त में आवाज आएगी, मेरे पड़ोसी कहां गए। ऐन घबराहट के वक्त में नफ्सी नफ्सी होगी, परेशानी होगी, अल्लाह पाक की तरफ से आवाज लगेगी, मेरे हमसाए, मेरे पड़ोसी कहां चले गए। अर्ज किया जाएगा, इलाहुल आलमीन आप तो वहदहू ला शरीक हैं, बेमिसल बेमिसाल हैं, आपका पड़ोसी कौन हो सकता है। फरमाया, मेरी मस्जिदों में सफाई करने वाले, खिदमत करने वाले, ये मेरे पड़ोसी हैं, ये मेरे हमसाए हैं, मेरे दरबार का खिदमत गुजार। कोई बादशाह कारदिली, कोई डीसी कारदिली, कोई एसपी कारदिली, कोई वजीर कारदिली, कोई मिंबर कारदिली, अल्लाह कहता है मस्जिद में खिदमत गुजार करने वाला वो मेरे दरबार कारदिली, मेरे दरबार का खिदमत गुजार। और एक हदीस शरीफ में यहां तक आता है कि मस्जिदों का खिदमत गुजार जो है, जानी और माली करने वाला, एक ऐसा वक्त भी आएगा कि अल्लाह पाक छुट्टी फरमा देंगे कि मस्जिदों के खिदमत गुजार कहाँ हैं। मखलूक इकट्ठी हो जाएगी, मैं भी हूँ, मैं भी हूँ, मैं भी हूँ। एक हदीस में आता है, अल्लाह पाक फरमाएंगे, तुम मेरे दरबार के खिदमत गुजार हो, तुमसे हिसाब लेते हुए मुझे शर्म आती है, तुमसे हिसाब किताब करते हुए मुझे शर्म आती है, जाओ बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चले जाओ। हदीस पाक में आता है कि उस वक्त बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े मालदार, बड़े बड़े हाजी रोवेंगे, ले भाई हम तो देखते रहते थे कि ये हर वक्त झाड़ू देता रहता है, और कोई काम नहीं, मस्जिद की झाड़ू देने लग गया, और कोई काम नहीं रहा, सफे बिछाने लग गए। हम तो जलील समझते थे, हकीर समझते थे, और आज हिसाब किताब भी ना हुआ। उस वक्त पेशेमानी से कुछ नहीं बनेगा, रोने धोने से कुछ भी नहीं बनेगा। एक जगह आता है कि लोग अफसोस करेंगे क़यामत में, और अफसोस करके इतने अपने हाथों की हथेलियों को मलेंगे कि हथेलियों की खाल उतर जाएगी, खाल उतर जाएगी अफसोस के हाथ मलते मलते। लो भाई
ये मेरा पड़ोसी, मैं इसको अच्छी तरह जानता हूं, यूं ही पागल सा फिरा करता था, आज अरश के साये में बैठा है। इतना घबराहट का दिन जब बड़े बड़े परेशान है, ये गलियों में यूं ही फिरता था, अरश के साये में बैठा है, खा पी रहा, मजे उड़ा रहा है। उस वक्त रोने से कुछ नहीं बनेगा। अल्लाह पाक का उस वक्त भी एक ही जवाब होगा। कई लोग अर्ज करेंगे इलाहुल आलमीन गलती हो गई, हम कुरान समझ न सके, हम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान समझ न सके। फातरफना बिजुनूबिना फहल इला खुरूजिम मिन सबील। फातरफना बिजुनूबिना फहल इला खुरूजिम मिन सबील। इलाही, हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, हम एतराफ करते हैं बड़े गुनाहगार हैं, बड़े स्याकार हैं, बड़ी हमसे गलतियां हुई हैं, अब कोई तौबा करते हैं, कोई रास्ता निकलने का बता। इस अजाब से कहां जाएं? कुरान करीम में है, लोग रोवेंगे, पछतावेंगे, रब्बना गलबत अलैना शिकवतुना व कुन्ना कौमन गालीन। इलाही, हमारी बदनसीबी ने हमें मार दिया, हमारी बदबख्ती ने मार दिया, अब हम इकरार करते हैं, हम गुमराही में पड़े रहे। रब्बना अखरिजना, रब्बना अखरिजना, इस अजाब से निकाल दे हमारे परवरदिगार। फगफिर लना वरहमना व अंत खैरुर राहिमीन। इस अजाब से जान छुड़ा हमारी, इस परेशानी से जान बचा। उस वक्त कई सौ साल, हजारों साल ये पुकारने के बाद गुनाह हो गया, बदबख्ती ने मारा, बदनसीबी ने मारा। कुरान करीम कहता, आवाज आएगी इख्सऊ फीहा वला तुकल्लिमून। चुप हो जाओ, तुम्हें आज बकवास करने की इजाजत नहीं, इजाजत नहीं। तुमने वो वक्त गुमाया, तुमने अपनी सारी जवानी का बेड़ा गर्क किया, उम्र का बेड़ा गर्क किया। आज तुमको हजारों साल, सैकड़ों साल एतराफ करते, माफी मांगते गुजर गए। मैंने तुम्हें ऐसा टाइम दिया था, कितने ही तेरे गुनाह हो, कितनी तेरी स्याकारी हो, कितनी तेरी बदआमाली हो। 2 रकात पढ़ के मेरे सामने झोली फैलाकर 2 आंसू तो बहा के देखता, उन 2 आंसुओं में मैं तेरी सारी जिंदगी के गुनाहों को बहा के ले जाता। 2 आंसुओं के पानी में जो समंदरों में ना बहते, दरियाओं में ना बहते, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, मैं तेरा रोने वाला मुंह देखकर तेरे ऊपर करम कर देता। तेरे मुंह बनाने की देर थी, 2 आंसू बहाने की देर थी, सारे गुनाह तेरे मैं माफ कर देता। तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा अल्लाह की नजर मान रही है और कहती है, फतकब माफी बतनी मुहर्ररा। या अल्लाह, जो कुछ भी मेरे पेट में है, मैं इस पे दावा ही नहीं रखने की, तेरे नाम पे वक्फ कर दूंगी, मुहर्ररा, आजाद कर दूंगी। फतकब्बल मिन्नी। अल्लाह 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 अल्लाह। वालदा मरियम को कितना फिक्र है कि मैं सारी उम्र सजदे करती रहूं, अगर मंजूर ना करे तो बेनियाज है, मंजूर ना करे बेनियाज है। फिक्र है उसे कबूलियत का। कहती है, फतकब्बल मिन्नी, मेरे मौला करीमी फरमा, तेरी रहीमी का सदका मांगती हूं, कबूल फरमा। फतकब्बल मिन्नी
इन्नका अंतस्समीउल अलीम। तू जो सुनने वाला भी है, जो मैं कह रही हूं तू सुनता भी है, मेरे दिल के हाल को जानने वाला भी तेरे सिवा कोई नहीं। हदीस शरीफ में आता है, चींटी कीड़ी पहाड़ों में चलती है, अल्लाह पाक फरमाते हैं मैं उसके पैरों का खड़का सुनता हूं। पहाड़ों में चलने वाली कीड़ी मकोड़े और पैरों का खड़का सुनता हूं, और एक एक कीड़ी मकोड़े की, करोड़ मखलूक की रोजाना खबरगिरी करता हूं, कौन भूखा है, किसने खा लिया है। दरियाओं में, समंदरों में, पहाड़ों में, फिजा में हजार लखों मखलूक है, सबको खिलाता हूं, सबको पिलाता हूं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमा दिया कि मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने नजर अल्लाह की मानी और फिर अर्ज कर रही है रो रो के फतकब्बल मिन्नी, और मेरे मौला कबूल भी फरमा। मैं कहती रहूं तू कबूल ना करे, मैं तेरा क्या बिगाड़ सकती हूं। एक तरफ अल्लाह का कुरान होता है और एक तरफ बनवाई हुई लोगों की बकवास होती है। ये मुसलमान कौम में बकवास पे एतबार कर रही है, कुरान पे एतबार नहीं करती, अल्लाह की किताब पे एतबार नहीं करती। जिस दरख्त के नीचे जनाब मोहम्मद करीम सबका जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत रिजवान ली थी, हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में मौत की बैत ली थी, दरख्त के नीचे बैठ के, वो दरख्त भी कितना खुश नसीब होगा जिस दरख्त का जिक्र कुरान में है। इज़ युबायिऊनका तहत शजरा, अल्लाह फरमाते हैं इस दरख्त के नीचे जितने भी बैत करने वाले हैं 1400 सहाबा किराम की जमात, मुझे अपनी किबरियाई की कसम मैं सारी जमात से राजी हो गया। अल्लाह 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 अल्लाह। पीरी मुरीदी देखो, मुरीद सहाबा किराम है, पीर मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फरमाया लक़द रज़ी अल्लाह अनिल मुमिनीन, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, खुदाई की कसम, शान जलाली की कसम, उलूहियत की कसम, मुझे अपनी इज्जत की कसम, जिन लोगों ने मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे बैत की है, मैं इनसे राजी हो गया। और आगे बढ़कर फरमाया इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह, जिन लोगों ने मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे इस वक्त बैत की है, तुमने बज़ाहिर मेरे नबी के हाथ पे बैत की है, मगर मैं ये समझता हूं इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं मैं खुदा के हाथ पे बैत की है, मेरे हाथ में तुमने बैठ कर ली। यदुल्लाहि फौqa अयदीहिम, मेरे नबी के हाथ के ऊपर मेरा हाथ था। जनाब फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौर आया। अब मुसलमानों को तो चाहिए ना ऐसा ठिकाना। वो 1400 सहाबा किराम तो जन्नती बन गए, इस दरख्त की ना लोगों ने पूजा पाठ शुरू कर दी। वहीं आकर सजदे, वहीं आकर नजर नियाजें, और कहने लगे सुभान अल्लाह, ये वो दरख्त कहती जिसके नीचे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे और 1400 सहाबा किराम ने बैत की थी सुलह हुदैबिया में। तो ऐसे दरख्त की तो पूजा करनी थी। जनाब फारूक आजम सब कह दो रजी अल्लाह तआला अन्हु, और हुक्म दिया इस दरख्त को जड़ों से निकाल दो, बिल्कुल इसको काट कर जड़ें उखेड़ दो इसकी। शुक्र है तुम में से नहीं था वहां कोई, वरना कहता ये फारूक आजम सबसे बड़ा वाबी है। बात भी
सही थी, उसी दरख्त के नीचे नबी ने बैठकर बैत फरमाई और उसी नबी के नीचे, दरख्त के नीचे 1400 सहाबा ने बैत की। और ऐसा बरकतों वाला दरख्त जिसका कुरान में जिक्र है, जिसका अल्लाह की किताब में जिक्र है, इतना बाबरकत दरख्त है, फारूक आजम ने खड़े होकर सामने कटवाया, जड़ें निकाल कर फेंक दी। क्यों? फरमाया अब यहां शिरक शुरू हो गया। शिरक ऐसा होगा, लोग कुरान को ठुकरा देंगे, शिरक को नहीं छेड़ेंगे, इसको नहीं छोड़ेंगे। मेरा अर्ज करने का मतलब ये कि एक औरत के औलाद नहीं, अल्लाह ताला से वो औलाद मांग रही है। कुरान में जिक्र करने का मतलब क्या है? अगर मेरे तेरे लिए सबक नहीं, इबरत नहीं, मिसाल नहीं, फिर इस कुरान के पढ़ने का फायदा क्या है? बस लोगों ने एक तरीका बनाया हुआ है कि जी कुरान शरीफ मुर्दों के लिए उतरा है, पढ़ पढ़ के बख्शो और मुर्दे जन्नत में पहुंचते जाएंगे। अल्लाह मियां फरमाते हैं, जालिमों इतना बड़ा जुल्म ना करो। ऐलान होता है कि जिंदा मर्द जिंदा औरत के लिए, जिंदा औरत जिंदा मर्द के लिए, बाग जिंदों के लिए, फल फ्रूट जिंदों के लिए, सब्जी तरकारी जिंदों के लिए, हवाई जहाज कार रेल मोटर सारी सवारी जिंदों के लिए, सब्जी तरकारी जिंदों के लिए, कोठी जिंदों के लिए, बंगले जिंदों के लिए, महल माड़ी मकान जिंदों के लिए, बाजार मार्केट दुकानें जिंदों के लिए, तमाम निजामी कायनात जिंदों के लिए। और इतना बड़ा जुल्म ना करो, तमाम चीजें जिंदों के लिए, मेरा कुरान मुर्दों के लिए। इसको मुर्दों के हवाले ना करो, मैंने तो ये जिंदों के लिए भेजा है और जिंदा नबी पे नाजिल फरमाया और जिंदा उम्मत को कुरान दिया है। लेकिन इसकी परवाह नहीं की जाती। कितनी फिक्रमंद है मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा, रो रही है, झोली फैला रखी है, अर्ज करती है फतकब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम। मेरे मौला कबूल फरमा, तेरी करीमी का सदका मांगती हूँ, तेरी रहीमी की भीख मांगती हूँ, मेरी इस नजर को कबूल भी फरमा। इसको मेरे पेट में जो है मैंने वो तेरे लिए नजर मान दी, मैंने तेरे लिए वक़्फ़ कर दी, मैं उस पे अपना कोई दावा ना जताऊंगी। फलम्मा वज़अतहा क़ालत रब्बी इन्नी वज़अतुहा उन्सा। ख्याल था लड़का पैदा होगा, अल्लाह मियां लड़का देगा, मस्जिद की खिदमत करेगा, सफाई करेगा, सारी उम्र झाड़ू पे लगा दूंगी, सारी उम्र अल्लाह के दरबार में बैतुल मुक़द्दस की सफाई में खर्च कर दूंगी, घर बुलाऊंगी नहीं, वहीं रखूंगी, वक़्फ़ कर दूंगी अल्लाह के नाम पे। आजकल तो वक़्फ़ की हुई चीज के लिए भी कचहरी में जा खड़े हो जाते हैं, जी अब्बा जी ने वक़्फ़ की थी, मैं तो नहीं की थी, मैं उन्हां दा पुत्र है, मैं वापिस लेना चाहना। अल्लाह के नाम पे देकर भी मुकर जाते हैं, बहाने बना लेते हैं। क्या हमारी मिसाल भी, एक मौलवी साहब ने सुनाया, बुढ़ड़ दा गुम हो गया कुक्कड़, बुढ़ी छोड़ी दा कुक्कड़ गुम थी गया तो गोले बद्दी गलियां विच, आखे या अल्लाह साइया मेरा कुक्कड़ लब वंजे, घट्टा दे सा तेरे नां ते, मेरा कुक्कड़ लब वंजे, घट्टा दे सा तेरे नां ते। वो कहे बाल आख्या डाडी क्या आदि पई है, कुक्कड़ दा 20 रुपए दा, घट्टा 500 रुपए दा, क्या करेंगी, कुक्कड़ लब के घट्टा दे से। इनमें हाथ हिला के आखन लगी, आके चुप करो, एक बारी लब वंजे देना कौन है, लब्बे तो सही दू नफली चापड़ सा। आज हर शख्स का मामला यही बना हुआ है। दिलों में झांको, नजर मारो, अपने
गिरबाने में मुंह झाँक कर देखो, हम सारे ऐसे हैं। मुसीबत आती है, कुरान कहता वइज़ा अनअमना अलल इंसानी आरज़वन आबी जानिबी, आराम पहुंचाता हूं, खुशी पहुंचाता हूं, करवट नहीं बदलते, 10 बजे तक सोते हुए उठते नहीं, आंख नहीं खुलती। वइज़ा मस्सहु शर्रु फज़ू दुआइन अरीज़, मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, जवान बेटा तड़प रहा हो, बच्चा सारी रात तड़पे, माँ सिरहाने बैठ के बड़ी लंबी लंबी दुआएं मांगती है, ठंडे ठंडे सांस लेती है, तेरे सिवा कौन है, तेरे सिवा कौन है, तू ही मेरा माबूद है, तू ही मेरा हाजत रवा है। और जब बच्चा ठीक हो जाए, फिर वही औरत खामिन को कहती है मैं नजर न्याज बनाउनी है, दाता दे दरबार से जाके बनना की बाल दी मैं नजर मननी आई, मन्नत मननी आई, उठे जाके देवना मैं। और लाख कहता रहे भी अल्लाह तो हर जगह मौजूद है, यही अल्लाह के नाम पे सदका कर दे। नो नो नो, मैं तो मन्नत माननी है, कब्र से खड़ के बंडल दी। मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा जब पैदा हुई, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम परेशान है, हैरान है। फलम्मा वज़अतहा क़ालत रब्बी इन्नी वज़अतुहा उन्सा, हैरान होकर कहने लगी या अल्लाह मेरा तो ख्याल था लड़का पैदा होगा, बैतुल मुक़द्दस में छोड़ दूंगी, सारी जिंदगी खिदमत करेगा, मेरा हिस्सा मस्जिद में बराबर पड़ता रहेगा, अल्लाह के दरबार का खिदमत गुजार रहेगा। ये तो लड़की हो गई, ये तो लड़की पैदा हुई, इसको क्या करूंगी, इसको क्या करूंगी, ये तो लड़की है। अल्लाह ने जवाब दिया वल्लाहु आलमु बिमा वज़अत, अल्लाह बेहतर जानता है जिसने इसको लड़की बनाया। वलैसा ज़करु कल उन्सा, 1000 मर्दों से ये लड़की बेहतर है, हजारों मर्दों से ये लड़की बेहतर है। इससे तो मैं अपने कुदरत के तमाशे लोगों को दिखाऊंगा, निशानियां दिखाऊंगा। तेरे पेट से ये जो मैंने लड़की मरियम पैदा की है, और याद रख पैदा होती बात है ना, तूने मेरे हवाले कर दिए, मेरी नजर है, मेरी न्याज है, मेरे दरबार में तूने देनी है। खबरदार, तुझे इसका नाम रखने का भी इख्तियार नहीं, नाम भी मैं खुद रखूंगा। कभी कुरान को समझा करो। आवाज आती है वो इन्नी सम्मैतुहा मरियम, मैंने इसका नाम मरियम रख दिया। अल्लाह फरमा रहे मैंने रख दिया। और ये ऐसी मरियम है कुरान में कयामत तक मैं इसका जिक्र खैर दुनिया जमीन पे पढ़ेगी, लोग पढ़ेंगे, औरतें पढ़ेंगी, इसका जिक्र खैर कुरान पे अर्श पे बराबर होता रहेगा। व इन्नी सम्मैतुहा मरियम व इन्नी उईज़ुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम, मैंने इसका नाम हज़रत मरियम रख दिया। अब तू यूं कर, इसको भी और इसकी औलाद को भी मेरी पनाह में दे दे, मेरी पनाह में दे दे। मुंह से कह दे ए अल्लाह ये तेरी नजर है, इसकी जुर्रियत भी तेरी नजर है। सैयदा हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कोई और होता तो मुकर जाता, भी बच्ची क्या करेगी, लड़की का मस्जिद में क्या काम है। वो आजकल का दौर तो था नहीं। यहां आखिरी जुमे को एक साहब ने मेरे से बात की, मैं अब तक अकेला बैठ के हंसता रहता हूं। कहने लगा जी औरतों का मस्जिद में इत्काफ बैठना जायज नहीं। मैंने कहा नहीं।
कहने लगा मैंने किताब में देखा था हुजूर के ज़माने में औरतें बैठती थी। मैंने कहा तू बिठा के देख, फिर मौलवियों का इत्तिकाफ भी और नमाज भी सारी का बेड़ा गर्क। मस्जिद, इसने रात दिन मस्जिद में रहना, फिर इत्तिकाफ कहाँ रहेंगे लोगों की। हुजूर करीम सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल इब्तिदाई दौर में और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में औरतें मस्जिद में आया करती थी नमाज पढ़ने के लिए, अहमियत बतानी थी, अजमत बतानी थी जमात की कि औरतें भी आकर मस्जिद में नमाज पढ़ती थी। लेकिन जनाब फारूक आजम सारे कैद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में मना फरमा दिया। फरमाया अब वो बात नहीं रही, वो तकवा, वो परहेजगारी कहां रह गई। अब फारूक आजम कहते हैं हमारे दौर में तकवा नहीं रहा। अल्लाह, अब हम क्या कहें, हमारे पल्ले क्या है, हमारे पल्ले क्या रह गया। पेट में बच्चे लेकर सारी रात VCR देखती है, गाने बजाने सुनती है, सैर तफरी वहां करने जाती है, बेपर्द फिरती है। अब बताओ इसके पेट से मरियम कहां पैदा होगी, गुंडे पैदा होंगे, डाकू पैदा होंगे, बदमाश पैदा होंगे। मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा को फिक्र लगा हुआ है, ये तो लड़की है, मैं अब क्या करूं। फरमाया अल्लाह कहते हैं जो तूने रो रो के मांगी थी ना, फतकब्बल मिन्नी मिन्नी फतकब्बल मिन्नी, मैंने ये कबूल कर रखी है, तू इसी को बैतुल मुकद्दस में पहुंचा दे। मैंने ये कबूल कर रखी, तेरी नजर तेरी न्याज मेरे नाम की माननी, कबूल ना करो। हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बैतुल मुकद्दस में ही छोड़ दिया। मेरे तेरे जैसा वैसा 100 बहाने बना करके, हाँ जी लड़की जात है क्या करेगी जी, चलो इतना ही बैठ के अल्लाह अल्लाह कर सी, यहीं बैठ के अल्लाह अल्लाह कर लिया करेगी। मकसद तो यही था ना, अल्लाह अल्लाह करना। 100 बहाने निकालते। सैयदना मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल मुकद्दस के मेहराब में इत्तिकाफ में बैठ गई। एक दिन सैयदा अम्मा आयशा सिद्दीका सारे कह दो रजी अल्लाह तआला अन्हा रो पड़ी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्यों। फरमाया आका ना लड़की है ना लड़का है, बच्चा ही कोई नहीं, सारी उम्र तरसती रहूंगी, यूं ही अरमान लेकर दुनिया से जाऊंगी। आप दुआ कर दें अल्लाह पाक कोई बच्चा बच्ची अता फरमा दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुआ मैंने की भी और कर भी दूंगा, लेकिन ऐसा एक मसला आज समझ ले, एक मसला आज समझ ले, पैगंबर मैं हूं, आखिरुज़्ज़मा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं हूं, इमामुल अंबिया मैं हूं, सारी कायनात का सरदार मैं हूं, सारी मखलूक का सरदार मैं हूं। अल्लाह ने कुरान मुझे दिया, किताब मुझे दी, उम्मत मुझे दी, लेकिन एक बात याद रख, ये औलाद वाला कोटा जो है ना, ये अल्लाह ने अपने पास रखा है, ये मेरे पास भी नहीं है। औलाद वाला कोटा मेरे पास भी नहीं है। मेरे पास होता तो मैं कितने ना बना लेता, अल्लाह सुब्हानहु व तआला के पास है। हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल मुकद्दस में बैठी हैं, अल्लाह अल्लाह करती हैं, ना बाजार जाती हैं, ना मार्केट जाती हैं, ना कोई और खाना लेके आता है, ना कोई खुराक का इंतजाम है, ना कोई पहुंचाने वाला है, ना कोई लाने वाला है, ना खुद बाहर निकलती है, ना खुद खरीदती है। ज़करिया अलैहिस्सलाम आए और आके क्या देखते हैं, वो भी बड़े हैरान थे भी खाती कहां से है। ज़करिया अलैहिस्सलाम खालू हैं, आए तशरीफ लाए, देखते क्या मरियम अलैहिस्सलाम के मुसल्ले पे ऐसे फल पड़े हुए हैं बेमौसम में, उन फलों की मौसम कोई नहीं, मार्केट में नहीं है, बागात में नहीं है, और ताजे ताजे फल हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के आगे रखे हैं। जनाब ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क़ाल या मरियम,
क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, ये फल कहाँ से आ गए? इन फलों की अब मौसम कोई नहीं, मार्केट में नहीं, बाजार में नहीं, बागो बहार में नहीं, इनकी तो मौसम चली गई और अब आने को बड़ी देर है। ये फल तुझे कौन दे के गया? ये कहाँ से लाई? किस दुकान से खरीद के लाई? कौन से मार्केट से लाई? कौन से बाजार से लाई? बड़ा लंबा पूछगछ की ज़करिया अलैहिस्सलाम ने। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने एक ही जवाब दिया, क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह। मेरे खालो आप तो पैगंबर है, कोई नहीं लाया, कोई नहीं दे के गया, ना मैं खरीदने गई, ना बाजार में गई, ना मार्केट में गई, ना किसी को पैसे दे करके भेजा, ना कोई नौकर लाया, ना कोई गुलाम लाया। क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, ये तो अल्लाह की तरफ से आए हैं, अल्लाह की तरफ से आए हैं। और समझा दिया मसला। जब वो देने पे आए फिर मौसम का सवाल ही पैदा नहीं होता, वो तो खालिक के मौसम है जिसने मौसम पैदा किए हैं। जब वो देने पे आए फिर काहे का मौसम और काहे की बहार। बाकी इंशाअल्लाह आइंदा मैं इस नियत से जिक्र खैर कर रहा हूँ इन हजरात का, पैगंबरों का, कुरान में से, कि मेरा तेरा अकीदा सही हो जाए, यकीन सही हो जाए। अकीदा बुनियाद है, अकीदा सही, अमल सही। अकीदा गलत, अमाल कितने ही कर लो बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं। अल्लाह ताला महज अपने फजलो करम से मेरा तेरा सारी उम्मत का, हमारी आल औलाद का अकीदा दुरुस्त फरमाए। अल्लाह हमें कुरान के सदक़े में माफ़ी अता फरमाए। बाकी इंशाअल्लाह अगले जुमे एक बात ये है, रमज़ान के बाद अजीब बात ये हो रही है, आप लोग देर से आते हैं। आप अगर अक्सर छुट्टी कर लेते हैं, अगर मैं छुट्टी करने लग गया फिर तुम ही बात करोगे। बस जी कार्य नहीं, बड़ा लालची हो गया, अब तो जुम्मे भी नहीं आता। तुम तो मुफ्ती हो ना, सेकंड में फतवा देते हो। मैं हजारों मील से भी भाग कर आता हूं और आप लोग आहिस्ता है, चले जाएंगे जी, अभी तो बड़ी देर है, चले जाएंगे। और ये कुर्बो जवार के तो अभी खुतबे की अजान होगी, अब तशरीफ लावेंगे। तो ऐसा ना करो। कुरान सुनने, हम तुमसे मुतालबा नहीं करते, कुरान सुनने के लिए ज़रा वक्त ही आया करो। इस कुरान की बरकत से मेरी तेरी निजात होगी। अल्लाह ताला सारी उम्मत पे फजल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। दोस्तों कितना खूबसूरत बयान था हज़रत क़ारी साहब रहमतुल्लाह अलैह का। दोस्तों इस बयान में हज़रत क़ारी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा की मन्नत और नज़र के बारे में कितनी खूबसूरत अंदाज में बताया है। और इसी बयान में हज़रत क़ारी साहब रहमतुल्लाह ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो वाक़या भी हमें बताया जब आपने हुजूर के सामने रोना शुरू कर दिया। तो हुजूर ने पूछा था आयशा क्या हुआ, तो कहा आका कोई औलाद नहीं है, ना बेटा है ना बेटी है, सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी, ऐसे ही चली जाऊंगी, तो आप मेरे लिए दुआ कर दें, अल्लाह औलाद अता फरमा दे। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया था आयशा मैं दुआ करता हूँ और कर भी दूंगा, लेकिन औलाद का कोटा मेरे बस में नहीं है। और वहीं दोस्तों आखिर में हज़रत क़ारी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू बड़े शानदार अंदाज में बयान की कि जब ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की मुसल्ले पर ऐसे फल देखे जिनका मौसम ही नहीं था, बेमौसम फल देखे, तो पूछ लिया था कि ये कहाँ से आए। तो हज़रत मरियम ने कहा था कि क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, ये मेरे अल्लाह की तरफ से आए हैं। और जब अल्लाह देने पर आता है तो ना वो मौसम देखता है, ना वो बहार देखता है, ना वो मौसम देखता है। अल्लाह जब देने पर आता है तो बेमौसम अता फरमाता है। बड़ा खूबसूरत वाक़या था। दोस्तों आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करते चलें ताकि क़ारी मोहम्मद हनीफ साहब के बयानात बहुत से लोगों के पास पहुँच सकें। आपको ये बयान कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी हम मिलते हैं आपसे फिर किसी नए बयान के साथ। जब तक के लिए ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।